آپ کو بتائیں کہ ملتان میں محکمہ صحت کے ڈینگی ورکرز کا احتجاج جاری ہے۔ ڈینگی ورکرز نے تیسرے روز بھی محکمہ صحت کے آفس کے مرکزی دروازے پر دھرنا دیا۔ ملازمین کی بڑی تعداد دھرنے میں شریک ہوئی۔ ملتان میں محکمہ صحت کے ڈینگی ورکرز اپنے مطالبات پر ڈٹ گئے۔ ڈینگی ورکرز نے تیسرے روز بھی محکمہ صحت آفس کے مرکزی دروازے پر دھرنا دیا۔ دھرنا پر بیٹھے ملازمین کا کہنا تھا کہ ان کی 6 ماہ کی تنخواہیں جاری کی جائیں۔ انہیں نوکری سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ بتایا جائے ان کا قصور کیا ہے، وہ اپنا گزارا کیسے کریں۔ ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ 10 سالوں سے ڈینگی میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے سے ڈینگی کا بھی کام لیا گیا، پولیو کا بھی لیا گیا، ٹائیفائڈ مہم میں بھی ہم نے کام کیا، نگہبان رمضان میں بھی ہم لوگوں نے کام کیا۔ اب 10 سال بعد سی او صاحب یہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ فارغ ہیں، کیونکہ ڈینگی کا کام سیزنلی ہوتا ہے۔ اس محکمے میں پچھلے 5 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے سے میری اپنی 12 ماہ کی بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ابھی بھی آپ ہمارے گھر چلے جائیں، کافی سارے ایسے جو لوگ ہیں ان کے گھر چلے جائیں، نہ کوئی راشن ہے نہ کچھ ہے، کسی نہ کسی سے مانگ کے یہاں تک کنونشن پہ آتے ہیں۔ رہنما جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر ہاشمی نے ڈینگی ورکرز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دھرنا میں شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملازمین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے آیا ہوں، حکومت ظلم بند کرے اور فوری طور پر ڈینگی ورکرز کی تنخواہ جاری کرے۔ گورنمنٹ بیک جنبش قلم جو ہے ان کو برخاست کر رہی ہے نوکری سے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں، ہیلتھ انتظامیہ سے کہتے ہیں، پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ فی الفور سارے واجبات ان کے ادا کیے جائیں جو بھی جتنے ملازمین کے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کے معاملات کو دیکھے، اور گورنمنٹ کے پاس بہت سارے پروجیکٹس ہیں کرنے کے، تو ٹرینڈ ورکرز کی ضرورت ہے، اس کو کسی نہ کسی ان کو ملازمتوں میں بحال کر کے کسی دوسرے کاموں میں اس کو جو ہے نا ان کو لیا جا سکتا ہے۔ ڈینگی ورکرز کی بڑی تعداد دھرنے میں شریک ہوئی۔ ملازمین کی طرف سے محکمہ صحت حکام کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ مظفر گڑھ سوشل سیکیورٹی اسپتال کے ڈاکٹرز اور سٹاف انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا، ہسپتال میں مریضوں کے لیے ادویات کا فقدان ہے، ہمارے جائز مطالبات پورے کیے جائیں ورنہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مظفر گڑھ سوشل سیکیورٹی ہسپتال کے ڈاکٹرز اور عملے کا مطالبات کے حق میں احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک او پی ڈی کی سروسز بند رہیں گی۔ جو غریب یہاں مزدور آتے ہیں وہ بیچارے بغیر میڈیسن کے اتنا پریشان ہو کے، ایک الٹرا ساؤنڈ مشین خراب ہے ہماری، ایکس رے مشینیں ہماری ٹھیک نہیں ہے، جی اے کی مشین خراب ہے، آپریشن نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، اور ڈیلی ویجز پہ جو جولائی سے گورنمنٹ نے یہ 37,000 روپے اجرت کی ہے، وہ بھی ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ بھی نہیں مل رہی ہمیں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ ہماری تنخواہوں میں 6 ماہ سے اضافہ نہیں کیا گیا۔ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ کم از کم 37,000 روپے کی تنخواہ کے اعلان پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ 3 سال سے ہسپتال میں ادویات نہیں فراہم کی جا رہی، ایکس رے سمیت دیگر مشینیں بھی موجود نہیں۔ غریب ورکرز کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ 1 جولائی سے جو 25% ہمارا انکریمنٹ لگایا گیا تھا وہ تو نہیں لگا، لیکن اس کے برعکس جو ٹیکس ہمارے پہ اپلائی کیا گیا ہے وہ سب ویسے ہی 1 جولائی سے کٹنا شروع ہو گیا۔ غریب لوگ ہیں جن کو 37,000 روپے کی ایک تنخواہ کا انکریمنٹ کا جھانسا دے کے ان کو بٹھایا گیا ہے، صرف سوشل سیکیورٹی مظفر گڑھ میں ہی یہ ہوا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر مطالبات منظور نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ ضلع بھر کے ہسپتالوں تک بڑھا دیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ انصاف کی فراہمی دہلیز پر چشتیہ میں وفاقی پارلیمانی سیکریٹری اوورسیز پاکستانی احسان الحق باجوہ کے زیر اہتمام کھلی کچہری کا انعقاد۔ ایم این اے نے شہریوں کے مسائل سنے اور فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ چشتیہ میں پارلیمانی سیکرٹری اوورسیز پاکستانی ایم این اے احسان الحق باجوہ کے زیر اہتمام میونسپل کمیٹی آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ایم این اے نے شہریوں کے مسائل سنے اور مسائل حل کرنے کے لیے 30 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کروائی، جس سے شہر کی سڑکیں، سیوریج اور دیگر مسائل حل کیے جائیں گے۔ میں جتنے دن یہاں ہوتا ہوں ہر روز کھلی کچہری ہوتی ہے، اور میں باہر بیٹھتا ہوں، ہر غریب آدمی کا سب سے پہلے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو امیر ہیں ان کے تو ہو ہی جاتے ہیں، اصل ہمیں غریب کو پرائرٹی دینی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں میرے حلقے کے جتنے بھی کام تھے صبح سے بیٹھے ہوئے ہم کر رہے تھے، خاص طور پر اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے بیٹھ کر آج بھی ہم نے میٹنگ کی ہے، 2 دن پہلے بھی میٹنگ کی ہے۔
एहसान उल हक बाजवा का कहना था कि अनकरीब चिश्तिया पंजाब के खूबसूरत शहरों में शुमार होगा। खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और एहसान उल हक बाजवा को अपने मसाइल से आगाह किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 30 करोड़ रुपया मैंने चिश्तिया सिटी को दिया है। जो जितने मेन रोड है वो उसमें सब में टफ टाइल लगेगी और इसके अलावा 20 करोड़ रुपए के टेंडर अभी मेरा ख्याल को 10 दिन बाद एक्सियन हाईवे के पास लगेंगे। 20 करोड़ वो भी आ गया है। तमाम जो मेन रोड है वो इंशाल्लाह बन जाएंगे। कुछ सीवरेज के लिए 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया रखा है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अगले 2 से 3 महीने में मेरा शहर खूबसूरत नजर आएगा। चेयरमैन पार्लिमानी सेक्रेटरी का मजीद कहना था कि चिश्तिया मेरा शहर है और मैं अपने शहर को पंजाब के खूबसूरत शहरों में शामिल करूंगा। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ ज़ैद हुसैन हाशमी, रोही, चिश्तिया। मुल्तान में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए का इजाफा। 24 कैरात सोना 2,84,000 रुपए फी तोला हो गया है। सोने की कीमत से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। मुल्तान में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान है। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हो गया। 24 कैरात सोना 2,84,000 रुपए फी तोला हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फराज रमजान से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, सोने की कीमतों के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जो है वो जारी है। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए का जो है वो इजाफा देखने में मिला है। अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत इस वक्त मार्केट में 2,84,000 तक फी तोला हो चुकी है। अगर इसके साथ साथ 22 कैरेट सोने की बात करें तो 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत जो है वो 2,60,000 रुपए हो चुकी है। जबकि इस वक्त मार्केट में जो है वो कस्टमर ना होने के बराबर है और मार्केटें सुनसान पड़ी हैं, जिससे सराफा बाजार के जो ताजिर हैं वो काफी परेशान दिखाई देते हैं। अगर ग्राम की कीमतों के हवाले से भी जो है वो आपको कहा करते चले तो 24 कैरेट सोने की फी ग्राम की कीमत जो है वो इस वक्त सराफा बाजार में 24,300 रुपए हो चुकी है। 22 कैरेट सोने की फी ग्राम कीमत वो 22,300 रुपए फी ग्राम मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि जो सुनारे हजरात हैं उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर में जो है वो शादियों का सीजन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट में जो कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है। जो 1-2 खरीदार आते हैं उनका रुझान भी जो है वो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसकी तरफ जा रहा है, जिससे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की डिमांड बढ़ गई है। तो ताजरों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि सोने की कीमतों पर भी जो है वो चेक एंड बैलेंस किया जाए ताकि कीमतें जो है वो कम हो सके और इनका कारोबार जो है वो पहले की तरह बहाल हो सके। जबकि दूसरी जानी बात करते चले तो जो कस्टमर हजरात है तो उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि तो सोना महंगा होने की वजह से दिन ब दिन जो है वो कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया फराज रमजान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रात के वक्त मुल्तान की बनी बनाई सड़कों को कौन तोड़ रहा है? शहरियों का कहना है कि नामालूम अफराद शहर की मुतादिद सड़कों पर कट लगाकर उधेड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हादसात बढ़ गए हैं। मुल्तान की बेशतर सड़कें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। नामालूम अफराद सर्द रातों में मुख्तलिफ सड़कों को ब्लेड से उखाड़ने लगे। स्पेशल क्रेन ला के जो ना डैमेज किया गया मुल्तान के ओवरऑल काफ़ी सारे रोड जो है मंजूराबाद, BC चौक, लारी अड्डा रोड, मुमताज़ाबाद रोड, ये सब टूट फूट का शिकार हैं, जैसे किसी ने स्पेशली तौर पे इन्हें जो है ना खराब किया हो। इनके खिलाफ ना मुकदमा दर्ज किया जाए और इन्हीं से रोड बनवाए जाएं, क्यों लोगों को आने जाने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों को पता नहीं चलता कि अचानक रोड के बीच में ऐसे जो टूट फूट का शिकार बना हुआ है, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सड़कें तोड़ने वालों को रोड पे लटकाया जाए और इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। 10 हादसात हो चुके हैं, कईयों की लातें बाहें टूट गई हैं, अस्पताल में चले गए हैं। शहरियों का कहना है कि रात के वक्त मासूम शाह रोड, डेरा अड्डा रोड, गला मंडी रोड, चौक कुम्हारा से विहाड़ी चौक और पुराना शुजाबाद रोड को तोड़ने का सिलसिला जारी है। सड़कें काटने से हादसात मामूल बन गए हैं। अभी सुबह भी एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे और सारे अवाम जो आ रही है बड़े परेशान है। और यहाँ पे जनाब सारे रोड इन्होंने पाड़ के रख दिए रात के टाइम। इनको कोई शर्म आनी चाहिए, कोई इनको चाहिए कि ये रोड बनाए। शहरियों का कहना है कि इंतजामी अफसरान की मिली भगत से ठेकेदार सड़कों को रिपेयर करने की गर्ज से रात के वक्त बिल्कुल दुरुस्त सड़कों को तोड़ रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर से सड़कें तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। शहरियों ने रात के औकात में सड़कों को तोड़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सड़कों पर ही घसीटने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान, रोही, मुल्तान।
कोटद्दू में लंडे बाजार की रौनकें बहाल हो गई हैं। गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए शहरी बाजार पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने लंडे बाजार को भी नहीं छोड़ा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कोटद्दू में लंडे बाजार की रौनकें बहाल हो गई। रंग बिरंगी जैकेटें और जर्सियां आवाम की तवज्जो का मरकज बन गई। लंडे का रुख कर रही है आवाम बाजार की महंगाई देख के, लेकिन ये बात कह रहे हैं ना भाई के 50 रुपए के लिए मसला बन जाता है। वैसे शहरियों का कहना था कि महंगाई के बायस बाजार से चीजें खरीदने की कुव्वत नहीं, इसलिए लंडे बाजार का रुख किया है, लेकिन यहाँ भी महंगाई ने डेरे डाले हुए हैं। पिछले साल की निस्बत से महंगाई ज्यादा हो गई। गाहक के साथ यकीन करो इतना छेड़छाड़ होता है कि गाहक पैसे भी नहीं देते, 50 रुपए के लिए रोला देते हैं। दुकानदारों का कहना है कि गाहक 50 रुपए की खातिर बहस मुबैसे पर उतर आते हैं। माल पीछे से महंगा मिलने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मौलाना, रोही, कोटद्दू। और नाज़रीन, मुल्तान इंतजामिया की गफलत या नाअहली, पुल बरारा रोड 1 साल से टूट फूट का शिकार है। रोड पर गड़ों के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं ओन अब्बास से। जो बिल्कुल, अगर हम बात करें मुल्तान शहर में तरक्याती काम जो हैं ना होने के बराबर हैं। इस वक्त भी हम पुल बरारा रोड पर मौजूद हैं और इस रोड के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्राउन फेलियर होने की वजह से जो है इस रोड को खोदा गया, मगर जो ये रोड है सिंगल वे रोड है, मगर दो तरफ की ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है और इस सूरत हाल में जो है इस रोड पर ट्रैफिक का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है। और हम देखते हैं कि मुल्तान MDA से जो है ये रोड पुल बरारा की साइड पे कनेक्ट करता है और आगे जो है पुल बरारा से जो है हेड मोहम्मद वाला की तरफ भी ये रोड आ जाता है। मगर अगर हम यहाँ पर मसाइल के वाले से बात करें तो इस रोड को जो है क्राउन फेलियर की वजह से खोदा गया, मगर अरसा दराज गुजरने के बावजूद जो है इस रोड को यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे थे। मुल्तान इंतजामिया की गफलत या नाअहली, पुल बरारा रोड 1 साल से टूट फूट का शिकार है। रोड पर गड़ों के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है और मुख्तलिफ हादसात भी होते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान इंतजामिया की गफलत या नाअहली, पुल बरारा रोड 1 साल से टूट फूट का शिकार है। बहुत शुक्रिया उन अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गवर्नमेंट बॉयज स्कूल मैक्लोडगंज में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर अंजुमन ताजरान थे। उलमाए कराम का खिताब में कहना था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए मशाल राह है। तकरीब के आखिर में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। गवर्नमेंट बॉयज स्कूल मैक्लोडगंज में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर अंजुमन ताजरान थे। उलमाए कराम का खिताब में कहना था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए मशाल राह है। दुनियापुर में भी पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 11 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से मनशियात की खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। दुनियापुर में पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 11 किलोग्राम चर्स बरामद, मुलजिम गिरफ्तार।